Okay, write down heading collisions. Write down heading collisions. A collision is said to occur. A collision is said to occur between two bodies. A collision is said to occur between two bodies either if they physically collide, either they physically collide against each other, physically collide against each other, or if the path of one, or if the path of one, or if the path of one, path of one is affected by, path of one is affected by the force exerted by the other. The force exerted by the other. Okay, write down types of collision. Types of collision. Types of collision. ब्रैकेट में लिख देना on the basis of energy. Within bracket, on the basis of energy. एनर्जी के बेस कितने टाइप के collision होते हैं? नंबर वन, नंबर वन, ऐसे नंबर वन इलास्टिक कोलिजन. Elastic collision. If there is no loss of kinetic energy, if there is no loss of kinetic energy, if there is no loss of kinetic energy during during the collision, during the collision. उसके नीचे इसी में स्टार बना के लिखना है एक पॉइंट, इलास्टिक कोलिजन में ही स्टार बना रहा है. टोटल मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी. टोटल मोमेंटम
and total energy is conserved. Total momentum and total energy is conserved. Number two, inelastic collision. Inelastic collision. If there is a loss of kinetic energy, if there is loss of kinetic energy, if there is loss of kinetic energy during the collision, during the collision, इसमें एक पॉइंट लिखना, स्टार बना के, momentum is conserved, total momentum is conserved, total momentum is conserved, but kinetic energy is not conserved. But the kinetic energy is not conserved. Okay, kinetic energy is not conserved. Number three, number three, perfectly perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision. If there is a loss of kinetic energy during collision, if there is a loss of kinetic energy during collision, and the bodies are stick together, and the bodies stick together, and the bodies stick together, and the bodies stick together after collision. Stick together after collision. Next heading, types of collision. फिर से लिखो एक बार हेडिंग, टाइप्स ऑफ collision. ब्रैकेट में लिखना on the basis of motion, on the basis of motion, on the basis of motion.
Number one, head on, head on, or one dimensional. Collision. Head on or one dimensional collision. देखो इसमें था आपका इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, है ना। इलास्टिक कोलिजन में जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करती है तो इसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती है, लॉस ऑफ मोमेंटम नहीं होता है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं और कोई मोमेंटम का लॉस नहीं होता। इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम का कोई लॉस नहीं होता है लेकिन एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम का लॉस नहीं होता है और काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ये दोनों की डेफिनेशन आधी सेम, लेकिन इसमें क्या होता है कि कोलिजन के बाद बॉडीज आपस में स्टिक कर जाती है और इसमें ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है ना। इसमें नेसेसिटी है, क्या नेसेसरी है? नेसेसरी ये है कि कोलिजन के बाद बॉडीज आपस में चिपक जाएंगी, स्टिक कर जाएंगी। ठीक है। अब आती है बात दूसरे टाइप की कि हेड ऑन कोलिजन क्या है। मोशन के बेसिस पे अगर हम करें, अगर ये सामने सामने टक्कर होती है ना, और सामने सामने टक्कर होती है और एक लाइन में अगर आ रहे थे और कोलिजन के बाद भी उसी लाइन में मोशन कर रहे है ना, एक लाइन में अगर मोशन करें यानी सामने सामने टक्कर हो, तो इसको वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन भी देखने इसमें क्या है। हेड ऑन कोलिजन है, it is the collision in which it is the collision in which it is the collision in which the colliding bodies move along the colliding bodies move along the same straight line, same straight line path, move along the same straight line path before and after collision, before and after collision। यानी पहले और बाद में दोनों टाइम पे अगर ये एक ही लाइन में मोशन करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वन डायमेंशनल मोशन या हेड ऑन कोलिजन। ठीक है। राइट डाउन। सेकंड, ऑब्लीक, क्यू यू ई, ऑब्लीक, और टू डायमेंशनल, ऑब्लीक और टू डायमेंशनल कोलिजन। ऑब्लीक और टू डायमेंशनल कोलिजन। राइट डाउन। इफ टू बॉडीज डू नॉट मूव, if if two bodies do not move, if two bodies do not move along the same straight
line path along the same straight line path before and after collision. Before and after collision. Okay, right. हमने on the basis of energy and on the basis of motion हमने देख लिया कि कोलिजन कितने टाइप का है, हेड ऑन कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन, एक लाइन में मोशन करेगा या तो दो लाइन में मोशन करेगा, है ना, मीन्स हम कह सकते हैं टू डायमेंशनल मोशन. तो ये दिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ मोशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी. ये आपने पढ़ लिया. इसके बाद आती है बात आपके न्यूमेरिकल पोर्शन. न्यूमेरिकल पोर्शन देख, राइट डाउन हेडिंग elastic collision in one dimension. इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन भी दे रहा है और वन डायमेंशन भी दे रहा है, दोनों को कंबाइन करके पूछ रहा है ना. इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन यहाँ पे लिख लेना. टोटल मोमेंटम कंजर्व, kinetic energy is also conserved. Total momentum and kinetic energy both are conserved. ओके, नाउ क्या देखते हैं कि एक ग्राउंड है, यहाँ पे कोई एक बॉडी है, इट इज मूविंग with a velocity u1 and it has mass m1, and here this is the second body, it is mass m2 moving with velocity u2, है ना. इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे बिफोर कोलिजन, ठीक है. And what about after collision? It is moving here and it is moving here. It has mass m2, velocity v2, mass m1, velocity v1. This is after collision. Draw the figure. Before collision, after collision, m1, m2, u1, u2. Go down fast.
डन। ओके, देखो कोलिजन इसमें जो दिखाया गया है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही, लेकिन हमने जो कंडीशन मानी है इसके बेसिस पे हम फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, पहला हम लिखेंगे मोमेंटम कंजर्व, है ना। देखो मोमेंटम इज कंजर्व, देखो यहाँ मोमेंटम इज कंजर्व। टोटल मोमेंटम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताओ हमको टोटल मोमेंटम क्या हो सकता है, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। तो यहाँ पे लिखोगे टोटल मोमेंटम इज कंजर्व, फिर उसके नीचे लिखोगे टोटल मोमेंटम बिफोर collision is equal to total momentum after collision. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. यहाँ आप देखोगे ध्यान से तो इसका मोमेंटम कितना होगा, एम इंटू भी होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। फिगर के ऊपर आप एक एरो बना देना ऐसे, दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव मान ली जाती है। तो बताओ इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हुई, यू u1 पॉजिटिव है और u2 नेगेटिव है। इसी तरह से यहाँ पे v1 नेगेटिव है, v2 पॉजिटिव। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 माइनस u2 इक्वल टू m1 माइनस v1 प्लस m2 v2। ओके, राइट डाउन, इसके नीचे लिखो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर collision is equal to total kinetic energy after
collision. Total kinetic energy before collision is equal to total kinetic energy after collision. Before and after. Total kinetic energy before collision equal to total kinetic energy after collision. ओके, यहाँ पे आप लिखोगे इसकी किनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. कहीं माइनस नहीं लगेगा क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है, और अगर हम वेलोसिटी को माइनस लेते हैं तो स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा. मास तो नेगेटिव होता नहीं है ना, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है लेकिन हर जगह वेलोसिटी का स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम माइनस लगाते भी हैं तो स्क्वायर होके वो पॉजिटिव हो जाएगा. एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सर अगर m1 और m2 बराबर हुए तो क्या u1 और v2 इक्वल होंगे? हाँ, हो सकता हाँ है. हो सकता फ्रिक्शन इग्नोर करने पे. तो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे. इसमें अगर m1 m2 बराबर है, u1 v2 बराबर है, तो इसमें क्या क्या बराबर होगा, क्या बराबर नहीं होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन में कवर हो जाएगा. डन. ओके, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग. यहाँ पे इलास्टिक की जगह पे इन इलास्टिक का, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. राइट डाउन. यहाँ पे नीचे इसके लिखो, टोटल मोमेंटम बिफोर collision equal to total momentum after collision. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. ये पूरा मोमेंटम वाली इक्वेशन लिखोगे, ये पूरा वही रहेगा क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है. ये इक्वेशन पूरी लिख लो यहाँ तक. इसमें लिखो नीचे, kinetic energy is not conserved. Kinetic energy is not conserved. Delta
KE is equals to KE initial minus KE final। इनिशियल माइनस फाइनल इसलिए किया क्योंकि इनिशियल ज्यादा होगी, फाइनल वाली कम होगी, इसलिए 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2। मतलब कुछ लॉस होके कुछ एनर्जी में डिफरेंस आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दिया प्रोडक्ट। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना। नेक्स्ट राइट डाउन perfectly inelastic collision। Perfectly inelastic collision in one dimension। Perfectly inelastic collision in one dimension। फिगर बनाओ। M1 और M2 दोनों ऐड हो जाएंगे, एक दूसरे स्टिक कर जाएंगे, and they will move with the same velocity v, not v1 and v2, they will move with the same velocity v। ओके राइट डाउन मोमेंटम इज कंजर्व। इसके नीचे यहाँ पे लिखोगे मोमेंटम इज कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए क्या करेंगे, m1 u1 प्लस m2 minus u2 is equal to m1 plus m2 v। मोमेंटम इज कंजर्व, मास स्टिक हो गया ना एक साथ, मोमेंटम कंजर्व होगा। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, लिखना काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। डेल्टा के इक्वल टू के इनिशियल माइनस के फाइनल। हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2
वी स्क्वायर। हो गया। इजी है इसका कुछ है नहीं। उसके बाद लिखोगे आप लोग नेक्स्ट हेडिंग, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। देखो, एक बॉडी है यहाँ और एक बॉडी ये, इसका मास m1, वेलोसिटी u1, इसका मास m2, वेलोसिटी 0, है ना। दिस इज बिफोर collision and after collision. After collision, they are moving with some angle. They are moving with some angle, theta 1 and theta 2. Let us suppose this is theta 1 and this is theta. थोड़ा बड़ा फिगर बनाना, बड़ा फिगर बनाना थोड़ा आसानी रहेगी। Let us suppose this is V1 and this is V2. Draw the figure. देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं टू डायमेंशन की बात हो रही है, इसमें एक्स और वाई एक्सिस की बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वेलोसिटी ये थीटा 1 हो जाएगी। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1 cos थीटा 1, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v1
साइन थीटा वन। सेम इसी तरीके से इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, इट विल बी थीटा टू ना, तो v2 cos theta 2 in this direction, v2 sin theta 2. This is mass m1, this is mass m2. देखोगे मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। उसके बाद एक्स एक्सिस की बात करेंगे। एक्स एक्सिस से बताओ इसका टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा, m1u1 प्लस m2 इंटू 0 इज इक्वल टू, दोनों उसी डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा। एक्स डायरेक्शन की बात, वाई एक्सिस की अगर हम बात करेंगे m1 इंटू 0 m2 इंटू 0 m1 v1 sin थीटा 1 प्लस m2 माइनस v2 sin थीटा। देख लो अगर कोई दिक्कत होता एक्स एक्सिस में फिर वाई एक्सिस, क्योंकि बिफोर कोलिजन एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहा है, वाई एक्सिस इसका जीरो हो जाएगा। जब वाई एक्सिस की बात करेंगे तो दोनों टाइम पे मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम जीरो है इन वाई डायरेक्शन बिफोर कोलिजन, एंड आफ्टर कोलिजन जब देखोगे तो आपका एक पॉजिटिव पे धारा दूसरा नेगेटिव। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम यहाँ पे कोई समझ में आ रहा है कि बताना पड़ेगा फिर से, एनी प्रॉब्लम इन दिस इक्वेशन। देखो फिर से बताया था मैं, ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये रेस्ट ऐसा माना गया, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ये रेस्ट पे ही घूमने वाला है। m1u1 एंड m2 इंटू 0 एक्स डायरेक्शन, और इसकी एक्स डायरेक्शन की बात करें m1 v1 cos थीटा पर, इसकी एक्स डायरेक्शन की बात करें m2 v2 cos थीटा। और जब हम y एक्सिस की बात करते हैं तो ये और ये दोनों रेस्ट पे है अकॉर्डिंग टू y एक्सिस, m1 0 m2 0। फिर यहाँ पे y एक्सिस की बात करें तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है ऊपर, ये वाला नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो m1 v1 sin थीटा 1 प्लस m2 माइनस v2 sin थीटा। ठीक है ना, लिख लो इसके नीचे, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड, है ना।
तो लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन is equals to kinetic energy after collision. है ना, क्या लिखना चाहिए? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 इंटू जीरो स्क्वायर, जीरो है तो जीरो स्क्वायर, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि वो रेस्ट था। फिर उसके बाद हाफ m1, m1 क्या लिखना चाहिए? m1 v1 sin थीटा 1 या cos थीटा 1, हाफ m1 v1 cos थीटा 1 स्क्वायर या sin थीटा 1 स्क्वायर, या दोनों। कुछ समझ में आ रहा है? देखो, ना तो साइन लेंगे और ना तो कॉस लेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज स्क्वायर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, है ना। डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, इसलिए साइन थीटा कॉस थीटा की लेने की जरूरत नहीं। राइट डाउन हेडिंग, लास्ट हेडिंग, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ, मैं लिख देता हूँ, restitution, coefficient of restitution, ratio of the magnitude of, ratio of the magnitude of, ratio of the magnitude of the relative velocity, ratio of the magnitude of the relative velocity of separation, relative velocity of separation relative velocity of separation to the magnitude of, to the magnitude of relative velocity of approach, relative velocity of approach. E is equals to V2 minus V1 upon U2 minus U. Velocity of separation बाद में और velocity of approach पहले, है ना। velocity of separation to the velocity of approach, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में हमने माना बिफोर एंड आफ्टर दोनों सही, बिफोर एंड आफ्टर दोनों में हमने अपोजिट माना था, इसलिए हमने माइनस लिया हुआ है, और अगर सेम डायरेक्शन में होगी तो ऐड होगा। देख लेना। ओके, आज यहाँ तक हमने थ्योरी सारी पढ़ ली, इसको एक बार रिवाइज कर लेना आप लोग, सभी लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद एक दिन इसमें न्यूमेरिकल कर लेते हैं एंड द चैप्टर इज फिनिश्ड।
ओके, ठीक है। आज थ्योरी रिवाइज कर लेना जरूर से, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे तो थ्योरी से ही बेस्ड होगा, इसलिए थ्योरी को आज रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट डे मीन्स Saturday, we will solve the numerical based on these topics. Means collision. Okay. Okay. You can write your attendance and leave the class. Too fast. Write your attendance and leave the class. Do fast.